students, in previous lecture we studied lesson number 8, natural resources, in which we studied about resources as food, as a source, as energy, and it is basically has three types, that is on the basis of ownership, on the basis of reavailability, on the basis of distribution centers. So we classified our resources into three categories. इसके अलावा we can be classified into two types also, in another two types also, that is renewable and non-renewable. Renewable, that these are renewable resources, these are inexhaustible, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, like wind, birds, animals, etc. And non-renewable resources which cannot be reused once they are used, जिसको एक बार यूज कर लिया जाता है तो उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, that is called non-renewable. Then planning and conservation of resources, यहाँ पे conservation of resources लिखा है, that is printing mistake, so the actual word is conservation of resources. किस तरीके से resources को हम बचा सकते हैं वो लिखा है. Then for further we are on soil formation, in which we studied two definitions of soil, and in soil another definition of soil, that is the uppermost layer of the crust of the earth is called soil. In the topic of soil, we studied the definition about soil is the uppermost layer of the crust of the earth is called soil. Types of soil: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, marshy soil. First one is alluvial soil. This type of soil is spread over about 43% of the total area of India. इंडिया के टोटल एरिया में से 43% जो कवर किया हुआ है वो है alluvial soil. The soil is found in the northern plain from the Brahmaputra valley in the east up to Satluj in the west, and in delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. ये जो soil है वो northern plains में मिलती है from the Brahmaputra valley. ब्रह्मपुत्र वैली से स्टार्ट होती है और सतलुज तक होती है वेस्ट में, एंड इन द और वहां पर डेल्टा रीजन्स जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स वहां पे पाई जाती है. द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज ड्यू टू द एलुवियल डिपोजिशन बाय द रिवर. जो एलुवियल डिपोजिशन होता है इन रिवर्स का, उसकी वजह से एलुवियल सॉइल बनती है. There is more proportion of potash, phosphoric acid and limestone in this soil, and there is less proportion of nitrogen and humus. ये जो there is more proportion, यहाँ पे इसमें potash, phosphoric acid और limestone का soil में ज्यादा proportion है और कम proportion है nitrogen and humus. If pulses is grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. अगर यहाँ पर pulses दालें उगाई जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो रह जाएगा, उसके अंदर स्टेबलाइज हो जाएगा. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oil seeds, etc. can be grown in this soil. Crops जैसे wheat है, paddy है, sugarcane है, जूट है,
cotton, maize, oil seeds, etc. can be grown in this soil. इसमें मिलता है पैडी जो होता है वो होता है ए फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर. एक वो फील्ड जहाँ पे चावल उगाया जाता है उसको पैडी बोलते हैं, उस फील्ड को. सेकेंड वन इज रेड सॉइल. यहाँ पे मैप दे रखा है आपको, उस मैप के अकॉर्डिंग जो एलुवियल सॉइल है और ब्लैक सॉइल है उसका प्रॉपर एरियाज दे रखे हैं कि किस एरिया में आपको एलुवियल मिलता है, किस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलता है, कहाँ पे आपको रेड सॉइल मिलता है, कहाँ लेटेराइट सॉइल मिलता है, कहाँ डेजर्ट सॉइल मिलता है, कहाँ माउंटेन सॉइल होता है, कहाँ मार्शी सॉइल होता है. यहाँ पे मैप दिया हुआ है और वो कलर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो कलर का वो पर्टिकुलर एरिया में ये सारी सॉइल मिलती है. सेकेंड, रेड सॉइल. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया. एलुवियल सॉइल ने कितना कवर किया था सॉइल का? 43%. आई थिंक 43. यस, 43% occupied by alluvial soil and 19% of the total land of India is occupied by red soil. It is spread from Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in the north and from Rajmahal Hills in the east up to Kutch in the west. ये स्प्रेड होता है तमिलनाडु से, नीचे से स्प्रेड होते हुए वेस्ट की तरफ जाता है, साउथ से वेस्ट की तरफ जाता है. वहां पे बुंदेलखंड नॉर्थ में और फ्रॉम राजमहल हिल्स से लेके कच्छ तक ये एरिया कवर करता है. सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. इस तरह की जो सॉइल होती है वो राजस्थान में मिलती है. इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में सॉइल के ऊपर जो मैप है वो आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. This soil is red in color. Such soil is found in some parts of Rajasthan. इस तरीके की जो सॉइल है वो राजस्थान में मिलती है. The soil is red in color. ये जो सॉइल है वो रेड कलर की होती है due to the presence of ferric oxide. इसके अंदर ferric oxide होने की वजह से ये रेड कलर की होती है. And it becomes yellow as we go down. और जब हम डाउन जाते जाते हैं तो वही रेड सॉइल येलो होती चली जाती है. Lime, gravel and carbonate are not found in this soil. Lime, gravel और carbonate इस soil में नहीं found होता है, नहीं मिलता है. This is a deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. There is a deficiency. इसके अंदर कमी होती है लाइम की, मैग्नीशियम की, फॉस्फेट की, नाइट्रोजन की एंड पोटैश की. Crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato, etc. are grown in this soil. इस soil में क्या क्या उगता है? Millet, cotton, रुई, wheat, गेहूं, ज्वार, आपको पता होगा ज्वार. linseed होते हैं एक फ्लैक्स प्लांट होता है. फ्लैक्स सीड आपको पता होंगे. फ्लैक्स आपके घर में उसको अलसी कहा जाता है. अलसी के बीज जो आफ्टर कुछ लोग घर में खाने के बाद भी अलसी खाते हैं मुखवास की तरीके से, सो उसे फ्लैक्स प्लांट से फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो लिनसीड. ग्राउंडनट, मूंगफली के दाने, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल. इस सॉइल में ये सब उगाया जा सकता है. थर्ड, ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल और रीगर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. This soil was formed due to the spreading of Deccan lava. Black soil जो है या उसे rigor soil भी बोला जाता है, ये कवर करती है इंडिया का 15% एरिया. This soil was formed due to the spreading of Deccan lava. Deccan lava के फैलने की वजह से ये soil बनी थी. Such soil is found in entire Maharashtra, western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of कर्नाटका. ये जो सॉइल है वो महाराष्ट्र में मिलती है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलती है और आंध्र प्रदेश में मिलती है. कुछ पार्ट कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में भी ये सॉइल मिलती है. इन गुजरात, सूरत,
भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। इन जगहों पर भी, गुजरात के इन प्लेसेस पर भी ये सॉइल मिलती है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। लावा रॉक्स और क्लाइमेट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस सॉइल को बनाने में। देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। यहाँ पे प्रोपोर्शन में आयरन मिलता है, लाइम मिलता है, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इन तरह की सॉइल में ये सब मिलता है। इट इज कंसीडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल। इसको कहा जा सकता है कि ये काफी अच्छी और फर्टाइल उपजाऊ जगह होती है। दिस सॉइल ऑल्सो हैज अ कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। इस सॉइल के पास ज्यादा कैपेसिटी होती है टू रिटेनिंग यानी कीप और हैव समथिंग, यानी मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा अपने पास, अपने अंदर मॉइस्चर रखने का इस सॉइल में ज्यादा कैपेसिटी होती है। Whenever the moisture dries up, they develop fisher crops like they develop fisher। जब भी मॉइस्चर ड्राइज अप, जब भी मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा होता है और जब भी ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर सूख जाता है या हट जाता है तो वहां पे फिशर डेवलप हो जाता है। फिशर यानी एक लंबी गहरी दरार आ जाती है उस जगह पे, कि मॉइस्चर की वजह से वो जुड़ा रहता है। जब मॉइस्चर ड्राई हो जाता है तो वहां पे एक लंबी दरार आ जाती है। क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इस सॉइल में कॉटन, लिनसीड यानी फ्लैक्स सीड्स, अलसी, मस्टर्ड सरसों के दाने, ग्राउंडनट मूंगफली के दाने, टोबैको एंड उड़द, इट्स ए काइंड ऑफ दाल की तरह होती है, पल्सेस आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ये इस सॉइल में होती है। एज इट इज मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। क्योंकि ये ज्यादा सुटेबल होती है, इसकी जो कॉटन होती है, क्योंकि ये जो सॉइल है ये कॉटन के लिए ज्यादा सुटेबल होती है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। फोर्थ, लेटराइट सॉइल। द नेम लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेटर, विच मीन्स ए ब्रिक। लेटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी ईंट। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होने की वजह से लेटराइट सॉइल का कलर भी रेड होता है। रेड सॉइल का तो रेड होता है, ये लेटराइट का भी रेड होता है। When the soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard. When the soil becomes wet, जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये इतनी स्मूथ हो जाती है जैसे बटर होता है ना, उसकी तरह स्मूथ हो जाती है। लेकिन जब ये ड्राई होती है, जब ये सूख जाती है ये मिट्टी, तो बहुत हार्ड हो जाती है। It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the preservation of silica-based material. ये होता है, चेंज होता है ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से और ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। सिलिका बेस्ड मटेरियल के प्रिवेंशन की वजह से। सिलिका क्या होता है? ए केमिकल कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन फाउंड इन सैंड एंड इन रॉक्स सच एज क्वार्ट्ज। एक केमिकल कंपाउंड होता है सिलिकॉन का। सिलिका जो है एक केमिकल कंपाउंड होता है सिलिकॉन का, जो कि मिलता है मिट्टी में, रॉक में और सैंड में। सच एज क्वार्ट्ज भी इसकी तरह एक टाइप हो गया। दिस सॉइल हैज डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये जो सॉइल होती है वो डेवलप करती है हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। The soil contains more of iron, potash and aluminium. इसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा होती है, आयरन,
contains more of iron, potash and aluminium. The soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. can be grown after using fertilizers. The soil is less fertile. ये जो soil होती है, जैसे black soil जो है वो बहुत अच्छी फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, फर्टाइल बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा, एक्चुअली कॉटन एक ऐसी क्रॉप होती है जो जिसको उगाने के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी हमारी ब्लैक सॉइल, इसीलिए वहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा उगती है और उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। लेकिन लेटेराइट सॉइल में ये इसमें ऐसा कहा गया है कि ये लेस फर्टाइल होती है, यानी इसमें उपजाऊपन जरा कम होता है। बट कॉटन, फिर भी कॉटन, पैडी मैंने आपको बताया था, ए फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर, एक ऐसा फील्ड जहाँ पे चावल उगाया जाता है बहुत सारे पानी के साथ। चावल की खेती में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो पैडी हो गया। दूसरा हो गया रागी। रागी एक अफ्रीका एंड एशिया में एक अनाज होता है जिसे उगाया जाता है, एक प्रकार से आप मिलेट कह सकते हैं इसको, ज्वार अफ्रीका और एशिया में उगाया जाता है सबसे ज्यादा, ये वहां का है। शुगर केन, गन्ना, टी, कॉफी, कैश्यू, काजू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को यूज करने के बाद हम ये सब चीजें ग्रोन करते हैं, लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। This type of soil is seen in the area where the climate is arid or semi-arid. Semi-arid और arid area में ये सबसे ज्यादा ये टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। राजस्थान में और गुजरात के कुछ पार्ट्स में मिलती है। The soil is sandy and infertile. ये जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है, यानी रेत ज्यादा होती है, और इनफर्टाइल होती है, उपजाऊपन नहीं होता है। It contains more dissolved minerals. Rajasthan, Haryana and Southern Punjab have this type of soil. ये सॉइल राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के साउथ पंजाब में मिलती है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। गुजरात में ये दो जगह मिलती है, कच्छ में और दूसरा सौराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में ये सॉइल मिलती है, डेजर्ट सॉइल। With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. With the irrigation facilities की वजह से जो crops जैसे millet हो गई, ज्वार हो गई, तो can be cultivated, इसको यहाँ पे उगाया जाने लगा। किसकी फैसिलिटी की वजह से? इरिगेशन फैसिलिटीज आने की वजह से। अदरवाइज ये इनफर्टाइल सॉइल होती है, यहाँ पे उगाना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बट दो चीजें, ज्वार एंड मिलेट। सिक्स्थ इज माउंटेन सॉइल। This type of soil is seen in the area. Sorry, mountain soil. This type of soil is found in the valley and slopy regions of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 meters. ये जो soil होती है ये found होती है वैली में, यानी हिमालयाज में, स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयाज में, और 2700 से 3000 मीटर जो एल्टीट्यूड होता है वहां पे। इट्स लेयर इज वेरी थिन एंड इज अंडर डेवलप्ड। ये इसकी लेयर बहुत पतली होती है और ये अंडर डेवलप्ड होती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ये सॉइल मिलती है असम में, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में एंड कश्मीर। इन हिमालयाज में the soil is found at a general altitude in the regions of pine and chill trees. यहाँ पे पाइन और चिल ट्रीज हिमालय रीजन में ज्यादा होते हैं। पाइन और चिल ट्रीज आपको पता होगा जो सीधे होते हैं, कॉनिकल शेप में होते हैं, कुछ इस क्रिसमस काइंड के होते हैं, इस तरीके से कॉनिकल शेप में होते हैं और स्लोप पे होते हैं ऐसे, मतलब सारे स्लोप पे इस तरह के ट्रीज होते हैं।
Next, this type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas. ये जो सॉइल होती है ये 3000 से 3100 मीटर्स के कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलती है, हिमालयाज के सह्याद्री और ईस्टर्न घाट्स, तेराई रीजन ऑफ हिमालयाज में. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड द अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस कॉज्ड ड्यू टू द डिकेइंग लीव्स. ये जो सरफेस होता है अर्थ का वो कवर्ड होता है शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज की शेडेड लीव्स की वजह से, और अपर पार्ट ऑफ द लैंड, इसका जो अपर पार्ट होता है लैंड का वो ब्लैक होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस के इंक्रीज ज्यादा होने की वजह से, कॉज्ड ड्यू टू द डिकेइंग लीव्स. इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड. जब हम लैंड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो वो ब्लू से वो चेंजेस इनटू, वो जो सॉइल का कलर है वो या तो ब्लू में चेंज हो जाता है या रेड में चेंज हो जाता है. बिसाइड्स टी, इसके अलावा टी, कॉफी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ले यानी जौ, पैडी एक्सेट्रा. पैडी मतलब ज्वार, काइंड ऑफ मैंने बताया था अफ्रीका, ज्वार नहीं, ए फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन, जहाँ पे राइस उगाया जाता है, एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन. ये एरिया भी, मतलब ये सब चीजें भी वहां उगाई जाती है. द सॉइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया. ये जो सॉइल है ये लिमिटेड एरिया में फाउंड होती है. 8 मार्शी और पेटी सॉइल. दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स. बायोटिक एलिमेंट्स के एक्यूमुलेशन यानी बायोटिक एलिमेंट्स जो है उसको इकट्ठे करने की वजह से ये जो सॉइल है ये ह्यूमिड रीजन में होती है. ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट. ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान दिस लैंड इज सबमर्ज्ड. ये लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाती है अंडर वाटर यानी पानी के अंदर सबमर्ज हो जाती है. एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स, जब वाटर लेवल कम होता है, पैडी कैन बी ग्रोन इन इट, अंदर पैडी अपने आप उग जाता है. दिस इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल बट इट शोज इनसफिशियंसी इन फॉस्फेट एंड पोटैश. ये एक्सेस बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स होने की वजह से इस तरह की सॉइल जो है वो एक्सेस होती है, लेकिन शो करती है इनसफिशियंसी, यानी इसमें फॉस्फेट और पोटैश की कमी होती है. सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा. इस तरीके की जो सॉइल होती है वो ओडिशा में मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, कोस्टल तमिलनाडु में मिलती है, सेंट्रल एरिया ऑफ नदर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. द सॉइल हैज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट. इस सॉइल का बहुत लिमिटेड एक्सटेंट होता है. नेक्स्ट वन इज सॉइल इरोजन. Erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. Erosion का मतलब क्या होता है? Let's complete it then. Erosion का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स. लैंड के जो पार्टिकल्स है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देना, मतलब अपनी दूसरी जगह चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ. कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? मूविंग एयर एंड वाटर. बहुत तेजी से हवा चली, आंधी आई है, बहुत तेजी से पानी का फ्लो आया, जिसकी वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो एक लैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं और वो जगह खराब हो जाती है. इन अदर वर्ड्स the faster transportation of the particles of the surface land to the other place by natural forces. नेचुरल फोर्सेस से मतलब जो फास्टर ट्रांसपोर्टेशन है ये पार्टिसिपल्स का सरफेस लैंड टू अदर प्लेस, लैंड से दूसरे प्लेस पे बाय नेचुरल फोर्सेस. मतलब किसी इंसान ने जाकर वो काम नहीं किया, किसी एनिमल ने जाकर वो काम नहीं किया. नेचुरल वे से लाइक एयर
मूविंग एयर एंड वाटर, उसकी वजह से नेचुरल तरीके से वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इट टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर, बहुत साल लग जाते हैं अपर लेयर को दोबारा होने में। इफ द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाय स्टॉर्मी विंड, द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। अगर इफ द सॉइल पार्टिकल्स, अगर सॉइल पार्टिकल्स कैरिड अवे, चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेन और स्टॉर्मी विंड्स की वजह से, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज। इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर, बहुत जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर में अपर लेयर को मेंटेन करके रखें। सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड, ताकि सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो सके। Erosion means the transportation of land of land particles from one place to another with the help of moving air and water is called erosion. मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या मेजर्स किए जा सकते हैं? फर्स्ट, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। ग्रेजिंग एक्टिविटी मतलब जब कोई फील्ड होता है और वो फर्टाइल है, लेकिन जहां पर एग्रीकल्चर होता है वहां पर जाहिर सी बात है कि लोग एनिमल्स को भी एज अ पेट रखते ही हैं, तो उसको ग्रेजिंग के लिए लाइक काव हो गई, बफेलो हो गया, उसको ग्रेज करने के लिए, लाइक गोट हो गई, घास चराने के लिए उस फील्ड पे छोड़ देते हैं। तो वो ग्रेज करते हैं उसको, जितना ज्यादा वो ग्रेज करते हैं उतना ही ज्यादा उसका अपर लेयर, जो सॉइल का अपर लेयर है, वो खराब होने चला जाता है। तो उसको कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टूर मेथड इन स्लोपी रीजन्स। प्लांटेशन बहुत जरूरी है। सपोज स्लोपी रीजन है, ये स्लोपी रीजन है, ये स्लोपी रीजन है। अगर हम यहाँ पे प्लांटेशन कर दें इस जगह पे, यहाँ पर ये सब हम प्लांटेशन कर दें, तो जब बहुत फ्लो से जब पानी आएगा तो वो पहले यहाँ स्टॉप होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर आगे चलते चलते यहाँ स्टॉप होगा, इधर फिर आगे डिवाइड होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर जो फ्लो आएगा पानी का वो सब स्टॉप होते 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 डिवाइड होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो स्लोपी रीजन है, जब वहां पे पानी से आता है या फिर स्टॉर्मी विंड आती है या पानी का वाटर का बहुत तेजी से फ्लो आता है, तो उसको अगर वहां ट्रीज नहीं होंगे तो वो सारी जो अपर लेयर है उसको इरोज कर देगा, यानी पूरा का पूरा खराब कर देगा और लेता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग ट्रीज को प्लांट कर दें, तो जब वो बहुत फ्लो से जब वो पानी आएगा तो ट्री की वजह से वो डाइवर्ट होगा, देन जो उधर का फ्लो होगा वो और ट्री से डाइवर्ट होगा, तो ये डाइवर्ट होते होते जो वहां की सॉइल है उसको इतना
उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा और वहां की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो वो है वो बनी रहेगी। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड, तो जो आपके पास जो जितनी भी लैंड वगैरह फैलो लैंड हो उस पे ट्रीज को प्लांट करना। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, जहां पे स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा रहती हैं, पानी की वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर चेक डैम्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि जब भी कभी तेजी से पानी आए और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में एंटर करने वाला हो उससे पहले ही अगर बीच में हम डैम बना दे तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और उसका काफी प्रेशर वो डैम कंट्रोल कर लेगा। अगर डैम नहीं हुआ तो जो प्रेशर आ रहा है वो पूरा एरिया में एंटर कर जाएगा और वो एरिया की जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी। कल्टिवेट, इसीलिए कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स, चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जहां पे जरूरी हो। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर के स्पीड को रिड्यूस करने के लिए कल्टिवेट वेरी डीपली, जो हम फील्ड को कल्टिवेट करते हैं उगाने के लिए तो उसको ज्यादा डीपली रखा जाए ताकि कितना भी प्रेशर ऑफ वाटर आए वो उसको एकदम से ना उखाड़ पाए, उसको टाइम लगे। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? Conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. सॉइल कंजर्वेशन अभी हमने पढ़ा था। सॉइल इरोजन, पहले सॉइल के बारे में पढ़ा, फिर सॉइल इरोजन कैसे